India becoming republic on 26 January 1950, and here you have the constitution coming into effect, enforced, and now the constitution so enunciates. एक सवाल होगा ही कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पेशल लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पेशल लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल, मौलिक, बेसिक। इससे बेसिक कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। नथिंग ओरिजिनल टू दिस कैन बी कंसीव्ड। इट इज द फंडामेंटल ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, मीनिंग दैट anything on this earth, if we imagine something is fundamental and something is supreme, I suppose that would be only Constitution of India, and this is the beauty of Indian Constitution, by the way. Now, when I say fundamental law of the country and supreme law of the country, which country? India. Here, every word needs to be defined. What is India? India, that is Bharat, is a council of states. Article 124. Union and its territories. India, that is Bharat, is a council of states. Furthermore, India is a federation. India is a quasi-federal state. Now, that way, federation, confederation, quasi-federal state, every word has a different meaning. In case of India, this implies that India is a strong union. Strong union. Strong union means the states, UP, MP, Rajasthan, Bihar, entire 28 states. These states, they do not have right to secede from the center. The states, they do not have right to secede from the center. ये पृथक राज्य जो हैं, इनका स्वयं का संविधान नहीं है। ये किसी भी सूरत में भारत से पृथक होने का इनको अधिकार नहीं है। सो इट इज अ यूनियन विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस। इट इज अ यूनियन विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस, है ना। नाउ, फंडामेंटल इन नेचर एंड सुप्रीम इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नाउ इन टाइम्स टू कम एनी एक्ट, बिकॉज टाइम चेंजेस, any act, any section, any subsection, any clause, कुछ भी अगर आगे भविष्य में पता नहीं कैसी क्या स्थिति होगी, anything that needs to be created, everything needs to be in compliance with the basic provisions of the Constitution, basic provisions, basic features of the Constitution, and anything that is in contradiction to the basic features of the Constitution, that will be declared null and void. वो शून्य करणीय ही होगा। This is the meaning of being fundamental and being supreme. Now, जरा हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती देखिए अब। Article 1, India, that is Bharat, is a union of states. वो तमाम क्षेत्र, राज्य जो सीधे भारत सरकार के अधीन हैं, दे आर द यूनियन। एंड स्टेट्स, इन स्टेट्स को लेके दे कैन बी ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, दे कैन बी अ चेंज इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्टेट्स, कैसा भी इश्यू हो सकता है, डिमांड्स हो सकती हैं। पूरा आर्टिकल 1 to 4 डिटेल में डिस्कस किया गया है। किसके लिए? भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए, फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड who is citizen of India? How you can acquire Indian citizenship? How your citizenship can be deprived? ये तमाम बातें आर्टिकल 5 to 11 में बताई गई हैं।
5 to 11 में। किनके लिए? भारत के नागरिकों के लिए। विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनके क्या अधिकार हैं, एलियंस के क्या राइट्स हैं, है ना। मैंने कहा था कि भारत के संविधान की खूबसूरती देखिए, जरा सोचिए कि भारत की मिट्टी में सिर्फ इस बात पे मित्रों कि आपने जन्म लिया है, ओनली ऑन द ग्राउंड दैट यू हैव टेकन बर्थ ऑन इंडियन सॉइल, वी प्रोवाइड यू विद फंडामेंटल राइट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, वी प्रोवाइड यू विद फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स as is the nature of this constitution that it is the fundamental law of the country, so are your rights which are fundamental in nature, and so much so that in the event of violation of any of your fundamental rights, जो article 12 to article 35 है, in the event of violation of any of these fundamental rights, you can knock the doors even of the apex court of the country, that is the Supreme Court of इंडिया, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। इसी में आर्टिकल 32 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचार, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, सिर्फ इस बात पे कि आप भारत के मूल निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, आप याचिका दायर कर सकते हैं, है ना। ये डिटेल्स में याचिकाएं जो हेबस कॉर्पस, मेंडेबल, सेट्यूरारी, को वारंटो, प्रोहिबिशन, इस पे मैं आगे आऊंगा। Meaning that simply on the base that you have taken birth in Indian soils, India is giving you fundamental rights to the extent that any event of violation, you can knock the doors of the Supreme Court. However, these are with restrictions. These are with restrictions. कैसे restrictions? Fundamental rights are absolute, not absolute. We'll come on that later on. Now, अब हमें भारत से तो सब कुछ चाहिए है, राइट मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन बतौर नागरिक भारत के, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, आफ्टर ऑल वी ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मौलिक अधिकार थे, ठीक उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य होंगे। एज यू हैव फंडामेंटल राइट्स, commensurate to that you have fundamental duties। आप देखेंगे as fundamental are fundamental rights, so is the nature of the duties that you need to perform। हमें कहीं से अधिकार मिल रहा है तो उस राज्य के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होंगे। जैसे इन अधिकारों की प्रकृति प्रवृत्ति मौलिक है, ठीक उसी प्रकार कर्तव्यों की भी प्रकृति और प्रवृत्ति मौलिक होगी। वी हैव इन आर्टिकल 51, this was inserted by 42nd Amendment 1976, you have provision of fundamental duties towards the state। Now, अब बात हो गई राज्य कैसा है, संघ है, कौन सी फेडरल स्टेट है, बात हो गई हमारे क्या अधिकार हैं, बात फंडामेंटल राइट्स की हो गई, राइट्स के अगेंस्ट हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, बात मौलिक कर्तव्य की हो गई। नाउ इवन द स्टेट, व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, What can be a role model? एक दूरगामी दृष्टि से अगर हम वृहंगम दृष्टिपात करके देखते हैं तो जैसे जैसे समय में मित्रों परिवर्तन आता है, टाइम चेंजेस, उसी के अनुरूप वी हैव इवन प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट ने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक टॉर्च बेरर जिसकी लाइट में सरकार की मंशा है कि हमें नागरिकों के लिए ऐसे आगे चल रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो सोशलिस्ट हो सकते हैं, जो गांधी मॉडल पे हो सकते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। मीनिंग दैट ये मैंने आपको एक जो लेआउट बनाने की कोशिश की है इस वीडियो में, और आप सबको इस बहुत लाभान्वित होंगे। मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि विद इमीडिएट इफेक्ट सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज सिंपली सर्विसेज ऑफ राहुल दीक्षित टाइम्स। अभी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन आया था, उस कॉन्टेक्स्ट में सीरीज में देखें तो हमारा ये 4th वीडियो है, 3 दिन के अंदर अंदर। आगे भी, एंड अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम है, अभी आईएएस का एग्जाम लगा हुआ है, एंड यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द बैकबोन बाय द वे।
both at the level of prelims, at the level of mains. Particularly law students, my friends who are fresh lawyers and maybe aspiring for PCSJ, HJS, APO, these type of exams. तो संविधान की जितनी आपको जानकारी होगी, एंड सो मच सो आई वुड से, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि 18 साल के ऊपर मैं तो कहूंगा कि विधि का ज्ञान, लॉ ऑफ नॉलेज प्रत्येक नागरिक